شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ان دنوں میں ایلین کا بڑا چرچا ہے، ہر طرف ہر کسی کے منہ پر ایلین کا ذکر ہو، اور اس ذکر میں گلے اور شکوے بھی ہیں۔ خاص طور پہ حقیقت ٹی وی والوں نے اس کو بڑا نمایاں کیا ہے۔ ان کے اندر نہ جانے کیا شکایت ہے، اندر ہی اندر کیا گلا ہے، اندر ہی ایک طرح سے غصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں، ترکی ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، سعودیہ ہے، پاکستان ہے، اور بھی جتنے ہیں، کبھی وہاں پر زلزلہ ہے، کبھی کوئی پرابلم ہے، کبھی کوئی پرابلم ہے۔ کوئی کہتا ہے وہاں پر ایلین دیکھے گئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسرائیل میں ایسا کیوں نہیں، جبکہ ان کا بارڈر تو ساتھ ساتھ ملتا ہے؟ یہ بات تو واقعی حقیقت میں سوچنے والی ہے، فکر مندی کی بات ہے کہ جو ایلین آتے ہیں، وہ کون سی باڑ ہے کہ وہ اسرائیل میں نہیں جاتے؟ وہ کون سا معاملہ ہے کہ وہ انہیں فیور دیتے ہیں؟ آج میں اس پر بات ضرور آپ کے گوشوار کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر دھیان دینا ضروری ہے۔ آپ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اپنے پوائنٹ بنا کر لکھ لیں، کیونکہ بائبل کا خدا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کر دوں گا۔ پھر بائبل یہ کہتی ہے کہ میں مصریوں اور بنی اسرائیل میں فرق کر دوں گا، اور کیا بھی۔ مصر میں اندھیرا چھا گیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں روشنی تھی۔ جس کسی کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہی اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ مصریوں کا تعلق تاریکی کی قوتوں کے ساتھ تھا، اس لیے تاریکی ان کے گھروں میں تھی۔ بنی اسرائیل کا دھیان، گیان، سوچ، آنکھیں، فکر، لگن روشنی کی طرف تھی، کیونکہ ان کا خدا نور کا خدا ہے، نوروں کا خدا ہے۔ اس میں سے نور نکلتا ہے، وہ نوروں کا موجد ہے، وہ نور پیدا کرتا ہے۔ اس کا تعلق تاریکی کی قوتوں سے نہیں، ان کا تاریکی کی قوتوں کے ساتھ عمل دخل نہیں۔ جس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، وہی چیز اس کے گھر میں رہے گی، دکھائی دے گی، نظر آئے گی۔ ثبوت ہے کہ ان کا خدا نور ہے۔ مسیح خداوند نے بھی کہا، میں دنیا کا نور ہوں۔ اس نے کہا کہ نور میں چلو۔ نور کا تاریکی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ کیسا وہ ایک نبی ہے، کیسا وہ رسول ہے، کیسا وہ پیغمبر ہے، کیسا وہ کلمہ خدا ہے کہ اس کے پیدا ہونے پہ بھی فرشتے، ایلین مصروف ہیں، نیوز دے رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں، آگاہی دے رہے ہیں، پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اور جب وہ اس دنیا میں آ گیا تو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔
जब वो बच्चा है, आजरुए तालमुद, अकॉर्डिंग टू दी मिशना, बुजुर्गों की रवायतें, यहूदियों के जो रसूम हैं, उनमें बताया जाता है कि जब वो बच्चों के साथ खेलता था तो मट्टी की चिड़िया बना के उड़ा देता था। बचपन में भी बच्चों को जो गिर गया, चोट लग गई, हाथ लगाया, ठीक कर दिया। बच्चों के साथ खेलते हुए उनको जन्नत के फल खिलाता है। बड़ा हुआ है तो पाकिस्तान में काम करता है, तो जिस खेत में काम करता है उसका फल बढ़ गया है। भेड़ बकरियां चराई, जब भेड़ें चराई हैं तो उनका हासिल बढ़ गया है। जिस कुएं पे जाके बैठा, पानी पिया, वो कुआं मीठे पानी का हो गया। जिस घर में गया उस घर में निजात आ गई, शादमानी आ गई, खुशी आ गई। जिस शादी में गया उनकी मैं मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी थी, इसके जाने से फिर से रौनक बढ़ गई। अब अफसोस की बात है, कम इल्म लोगों की बात है, जो तहकीक नहीं करते, उनकी बात है कि मैं एक नहीं है। अंग्रेजी में बड़ा कम मवाद है मैं के ताल्लुक से। अरबी में बहुत बड़ा नाम है शराब का, और जो अरामी ज़बान है या अबरानी ज़बान है, इसमें बहुत अरबी से भी ज़्यादा अल्फाज हैं। वो जो ड्राई फ्रूट है जिसको पीस कर पाउडर बनाया जाता है, जैसे पाकिस्तान में टैंग है, माल्टे का रस है या अनरजाइल है, तो उसको पानी में डालो और वो भी शरबत बन जाता है। अरबी में उससे वो भी शराब बन गया। पीने को, शरबत को शराब कहा गया है, जूस को शराब कहा गया है। और वो जेली के तौर पे भी था, वो मशकों में भी था, वो मटकों में भी था, वो स्टोर भी किया जाता था। उसमें कशीद करके आला किस्म की शराब भी बनाई जाती थी, उसमें से सिरका भी बनाया जाता था। कोई 11 तरह की इकसाम है जिसे शराब कहा गया। लेकिन हमारे नाम नहाद पादरी और रेडीमेड डॉक्टर, स्कूलों से भगौड़े, काम से खाली, ना कोई ट्रेनिंग ना तालीम, अपने साथ डॉक्टर भी लिखा है, अलामा भी लिखा है, और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा है, और चले हैं कौम को सिखाने के लिए। पहले ही तालीम का फकदान है और अब आगे अंधा अंधे को राह दिखाए बैठे होते हैं, आगे सुन रहे हैं, हालेलुया भी कहते जा रहे हैं। बाइबल को पढ़ते नहीं, वहां पर क्या लिखा है, वही जो बातें बाइबल में लिखी हैं, एक दफा उसे पढ़ते हैं, दूसरी दफा अपने मुंह से उर्दू में बता देते हैं या पंजाबी में बता देते हैं। तो इसमें अलमियत क्या है, इसमें थियोलॉजी क्या है, इसमें सीक्रेट क्या है जो इतना मजमा लगा के बैठे हो? इसमें भेद की क्या बातें हैं? ये देखो, ये ट्रैक्टर है, बाद में ये ट्रैक्टर जो है ये खेतों में चलाया जाता है। ये इस ट्रैक्टर के 2 बड़े पहिए होते हैं, 2 छोटे पहिए होते हैं, इसकी 2 लाइटें होती हैं, इंडिकेटर भी होते हैं। ये बड़ा शोर करता है, आप क्या मार्का मार रहे हो? इसलिए मेरे अजीजों, यिर्मयाह की किताब में लिखा है, अगर कोई फख्र करे तो इस बात पर फख्र करे कि वो मुझे जानता है और मुझे समझता है।
खुदा को जानने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, और फिर आपको फायदा होगा, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, इल्मी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी, कलीसियाई तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी, अज़दवाज में भी। खुदा के कलाम पर ध्यान दें, इधर उधर की बोंगियां मार मार के अपना टाइम ना जाया करें। आपका टाइम बड़ा कीमती है, जिंदगी बड़ी कीमती है। सेल्फ स्टडी करें, बाइबल को पढ़ने की आदत डालें, बाइबल के जो जितनी किताबें हैं उनके नाम याद करें, उनके हवाले देखें। अगर पैदाइश की किताब पर गौर करें तो उसके 50 बाब हैं, 51 क्यों नहीं या 49 क्यों नहीं? तहकीक करें। अबरानी का लफ्ज, 5वां लफ्ज जो है वो हे से हया है, ये जिंदगी है। तो पैदाइश की किताब में हे इसलिए है क्योंकि वहां पर जिंदगी है, और उसके 50 बाब का जो हिस्सा है वो 5 है, जिसका मतलब है जिंदगी की किताब, जिसमें जिंदगी का आगाज हुआ। खरूज की किताब, उसके 40 बाब हैं। 39 क्यों नहीं या 41 क्यों नहीं? क्योंकि 40 साल उनके बियाबान में गुजरे, वो दुखों में रहे। खरूज के अदाद में 40 है, ये मशक्कत है। ये 4 का हिस्सा जो है, ये दीवारें हैं 4, ये कैद है, ये बंधन है, कंट्रोल में है। जो आपको सिखाता है, जो आपको सिखाती है, उस पर सवाल करें, उससे पूछें, बीबी अगर तेरी स्टडी है तो हमें सही तरह सिखा। पादरी साहब या जो कुछ भी हो आप, अगर स्टडी है तो सही तरह सिखाओ, दलाइल से सिखाओ, हवाला दो, प्रूफ दो। बोंगियां ना मारो कि एक दफा हमें कहते हो ये हवाला पढ़ो, दूसरी दफा खुद पढ़ते हो और उसको सलीस करके बोल देते हो, और वाह जी वाह, ये फलां अलामा आ गया, ये फलां प्रोफेसर आ गया, ये फलां डॉक्टर आ गया, ये फलां फलां आ गया। पहले ही मुल्क तारीकी में है, अब कलीसिया भी तारीकी में जा रही है। पुराने जमाने में सादे सादे लोग थे, खुदा के खादम, सादी कहानियां सुनाते थे, और उन कहानियों में खुदा का कलाम छुपा होता था, और उन कहानी को, दुनियावी कहानी को, वो खुदा के कलाम के साथ जोड़कर जिंदगियों को एकदम से हिला देते थे, और लोग तौबा करते थे, बपतिस्मा लेते थे। कलीसिया के अंदर भूख प्यास थी, और उस भूख प्यास का असर है कि आज तक वो कायम है। और अब का ये चाइनीज स्टाइल की जो कलीसियाएं हैं, जो दूसरे दिन अमीर होना चाहते हैं, एक ही गोल है, आसमान का कोई पता नहीं, आसमान की बादशाही का कोई मामला नहीं, मसीह की अजमत की कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा को जानने का कोई शौक नहीं। सिर्फ ये है कि मैं भी अगले दिन कार पे बैठ जाऊं। भाई जो इस तरह कर रहे हैं उन पर ध्यान दो, वो किस तरह से इस तरफ आए हैं? वो स्टडी से नहीं आए, वो खुदा की कुर्बत में नहीं आए। आप अपने ध्यान पुरानी कलीसियों पर करें, बाइबल स्कूल्स पर करें, वहां पर कितने कितने महा मजबूत स्ट्रांग खुदा के खादम बैठे हैं। उनके पास एकदम से क्यों पैसे का इतना बड़ा अंबार नहीं लगा? इनके पास क्या आ गया है? ये कौन से साइंटिस्ट हैं? इनके पास कौन सा बड़ा इल्म है? ना इनके पास जिस्मानी इल्म, ना रूहानी इल्म,
ना माशरती तौर पर कुछ जानते हैं, इधर उधर की बोंगियां मार के तो बेवकूफ बना रहे हैं। ये कुछ और है, मैट के नीचे कुछ और है। कई हैं जो किसी की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कई हैं जो किसी का पैसा ब्लैक से वाइट कर रहे हैं, कई हैं जो किसी सियासी लीडर का घर में अपना खजाना बना के बैठे हैं, उनके पैसे इनके पास हैं। आप ऐसा कर सकते हैं? आपके पास ये सोर्सेज हैं। इसलिए खुदा के कलाम पर ध्यान दें, स्टडी करें, इनसे सवाल करें, इनको भगाएं, क्योंकि इनके पास स्टडी नहीं। जब सवाल करोगे ये भागेंगे, जब पूछोगे तो ये घर नहीं आएंगे। इनका पेट इनका खुदा है। यूहन्ना की तरह मुंह खोलें, भले सर कलम हो तो हो, लेकिन सच्चाई बोलो। मसीह के दौर में भी, एलिया के दौर में भी, अलीशा के दौर में भी बड़े झूठे नबी थे, झूठे शागिर्द थे, बड़े पखंडी थे, लेकिन मलिया मेट हो गए, खत्म हो गए। मसीह की तालीम सच्चाई की तालीम है। इसीलिए मसीह ने कहा, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। टाइटल आजाद नहीं करेंगे। मसीह की पैदाइश पर फरिश्ते बिजी हैं, पैगाम दे रहे हैं, कभी मरियम को, कभी यूसुफ को, कभी उनको मिस्र लेके जा रहे हैं, मिस्र से वापस लेके आ रहे हैं, और जब वो मर गया तो फिर भी फरिश्ते उधर हैं, जब वो खिदमत में है तब भी फरिश्ते उसके साथ हैं। इस बात पर फख्र करें कि जिसे मैं मानता हूं उसका नाम, उसका टाइटल खास टाइटल है। उसके आगे फरिश्ते झुकते हैं, फरिश्ते उसकी गवाहियां देते हैं। उसको कहना नहीं पड़ता कि मैं नबी हूं, उसको कहना नहीं पड़ता कि मैं खुदा का कलमा हूं। वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं जिंदगी का पानी दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी देता हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। किसी ने नहीं कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। किसी ने कहा, आओ मैं बताऊं कि क्या करोगे तो तुम्हें राह मिल जाएगा। आओ मैं तुम्हें बताऊं क्या करोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या करोगे तो तुम्हें फरदौस मिल जाएगी, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हें आराम मिल जाएगा। आओ मैं तुम्हें बताऊं। वो तरीके बताते हैं, लेकिन ये देता है। ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में नहीं आया, ऐसी कोई हस्ती इस दुनिया में नहीं आई जिसकी पैदाइश से पहले भी एलियन, एंजल, नबी, रसूल, पैगंबर पेशन गोइयां करते हों, पैगाम देते हों, निशान देते हों, दुनिया में होते हुए उसके साथ साथ चलते हों। इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी गवाही देते हों, और आज तक जहां उसके पैरों के तलवे टिके हैं, उस जगह पर तूफान ना आए, उस जगह पर जलजले ना आए, उस जगह पर तबाही ना हो, और वो जगह के रहने वाले पूरी दुनिया पर हुकूमत करें। यह है अजमत, यह है जलाल, यह है कुदरत, यह है खुदाई, यह है जोर, यह है हैरानगी कि पूरी दुनिया के लोग मुंह में उंगलियां डाल के बैठे हैं। छोटा सा मुल्क है, थोड़े से लोग हैं, पूरी दुनिया पर हाकम है। असल में इस्राइल वो जगह है जहां एलियन इस तरह से आते हैं जैसे किसी दरख्त पर परिंदे बैठे होते, और वो वहां से जाते हैं कि किस मुल्क को क्या करना है, किस शख्स को कंट्रोल करना है, किस तरह से चलना है। आ जाएं, यीशु के पास आए, वो आपको भी प्रोटेक्टर दे देगा, आपको भी एलियन दे देगा, आपको भी एंजल दे देगा, आपको भी जिंदगी दे देगा, जिंदगी का